चलिए, विल कंटिन्यू. Okay, 1 minute. Savita, you can see my screen. Just let me know 1 minute. I'm just sharing my screen. Just give me a moment. हाँ, आपको मेरा screen? No, I can't see the screen. I can see the screen now. Thank you. Yeah, thank you. Okay. चलिए, so सबसे पहले now we were talking about Power Query. One quick recap regarding the different views we have in Power Query. So the first view on the left hand side is called the queries pane. Okay, this part is called the queries pane. This is called the result. Why? क्योंकि आप जो भी टेबल पे क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा आपको? Exactly. So that's the result. That's the reason why it's called the result pane. On the right hand side, what you see is basically called the query setting. तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए query settings, and you can see the different steps. अब मान लीजिए अगर आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये क्रॉस पे क्लिक कर दिया, चलिए क्लोज कर दीजिए आप लोग. कम ऑन योर सिस्टम करिए. सो आई विल रिपीट. जुलाई 2017 टेबल इज एक्टिव. ऑन द राइट हैंड साइड जो क्वेरी सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, आपने क्या कर दिया? आपने उसे डिसेबल कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया आपने उसे. यू हैव क्रॉस्ड इट. एम आई ओके विद एवरीबॉडी सो फार? नाउ क्रॉस कर तो दिया है आपने. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट इट बैक. So you'll go into the view tab. Under the view tab, extreme left, 9 o'clock, query settings. उस पर क्लिक करिए, दोबारा आ जाए. I repeat, under the view tab, extreme left, query settings. आप उस पर क्लिक कर दीजिए. आप देखिए query settings आपका दोबारा दिख जाएगा. Concept? Yeah? चलिए, let's go ahead. So this is your query settings. अच्छा, now अब मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि because I was doing it, so I got confused. So if in case if I close this screen, how to go back here, the query setting? First, did you close it? Have you closed the query setting, madam? Have you closed Yes. this? Yeah, this X button. Yes. Okay, now you'll go to the view tab. The view tab. Under the view tab, the layout group. Okay. And there's an option called query setting. Okay, just give me a minute. I will Sure. go look at them. Sure. Okay, it came. And in case if I close the whole window only? Okay, then you'll again have to go into the queries and transform data. Remember how did we come over here? I'll again do this. Let's say suppose I close the entire window. Okay, now it will take me back into my RDM. So then how will I come back? Under the home tab, under the queries group, where did I click on? I clicked on transform. This time transform data. There you go. Same. Okay, but now that's a very important conversation. I'll explain. Chaliye. So now you come to July. Okay, आप देखिए, you will see we have a column called cost. अभी simple जैसे आप Excel में करते हैं, you filter all the cost and only look at the data which is greater than 30. मैं दोबारा कहता हूँ, सब cost को filter कर दीजिए only for greater than 30. तो कैसे करेंगे आप? ये cost का column है, आप ये drop down में गए, आपने क्या कहा? Number filters. नंबर फिल्टर्स में क्या कहा आपने? ग्रेटर देन मैंने आपको क्या नंबर दिया? 30. ओके, तो ग्रेटर देन मैंने एंटर किया, आई रोट द नंबर 30 और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया. नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लुक ऑन द राइट हैंड साइड. आपकी क्वेरी सेटिंग्स में एक नया स्टेप ऐड हो गया है. नाउ माय क्रॉस क्वेश्चन टू यू इज कि सॉरी सर, सॉरी, फिल्टर्ड रोज आपका एक स्टेप ऐड हो गया. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वेयर इज द अदर डेटा ऑफ योर्स? इज इट रिमूव्ड? जरा भी नहीं. अगर आपको पूरा डेटा देखना है ना, जस्ट गो वन स्टेप अप. जस्ट वन स्टेप अप. क्या था? चेंज टाइप. देखो चेंज टाइप, पूरा डेटा मिल जाएगा. तो आपको क्या समझना है कि जब भी आप डेटा लोड करेंगे ना पावर बीआई में, इट विल गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स. एंड नाउ कम्स द मेन पॉइंट. जो लास्ट स्टेप है ना आपका, दैट गेट्स लोडेड इन योर आरटीएम. दोबारा सुनिए, जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? फिल्टर्ड रोज. फिल्टर्ड रोज में क्या हुआ था? आपने कहा कि जो ग्रेटर देन 30 है वो ही लोड होना चाहिए. ये देखिए आप. ओके, तो अभी
what's going to happen, the last step will be loaded in your RTM. इसलिए मैंने आपको जब याद है, मैंने आपको जो ड्राइंग बना के मैंने आपको बताया था कि आपका जो डेटा है बीच में पावर क्वेरी आता है, एंड देन ऑन द राइट यू हैव योर पावर बीआई, योर आरटीएम, बीच में आपका पावर क्वेरी आता है। जो भी आप वो पावर क्वेरी में करेंगे उसका जो आउटपुट होगा वो फिल्टर का, वो आपके आरटीएम का इनपुट हो जाता है। सो आई मे नॉट बी रॉन्ग अगर मैंने आपसे ये कहा that the output of power query becomes the input for RTM. दोबारा कहता हूं, the output of power query becomes the input, means the first step of your RTM. तो ना एक और चीज करते हैं, लेट्स गो बैक टू द क्रेडिट कार्ड डेटा। आप देखिए अंडर कार्ड टाइप वी हैव गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, सिग्नेचर। तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ गोल्ड एंड प्लैटिनम दिखाना है, तो मैंने सेलेक्ट ऑल को निकाल दिया, आई केप गोल्ड, आई केप प्लैटिनम। दोबारा कहता हूँ, आई मीन कार्ड टाइप, I only kept gold, I only kept platinum, और मैंने ओके कर दिया। Am I okay with you? ये भी देखिए फिल्टर्ड रोज आ गया। Now the question is that how do you go back into your RTM? By the way, आप ये देखिए एक completely different window है ये देखिए पावर क्वेरी इज अ डिफरेंट विंडो देन योर आरटीएम। आपका आरटीएम ये बैकएंड में आ गया है पीछे, ये आपका पावर क्वेरी एक अलग विंडो ही बना रहा है उसके ऊपर, ये देख रहे हैं आप। ओके, नाउ under the home tab you have to click on the button called close and apply. दोबारा सुनिए, under the home tab you have to yourself click the button close and apply. इस पे आपको क्लिक करना जरूरी है। तो अभी क्या होगा, अभी सबसे पहले आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपके डेटा पे अप्लाई करेगा, फिर वो क्लोज करेगा। क्लोज होके कहाँ पे जाएगा, आरटीएम के पास। एक्चुअली ये क्लोज एंड अप्लाई कह रहा है, बट हकीकत में उल्टा है, पहले अप्लाई एंड देन क्लोज। यस, अप्लाई मींस आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाई। आपको लगता है कि आपने जो क्लिक किया है वो डेटा पे गया है, बट हकीकत में तो गया नहीं है वो आपके डेटा पे, जब तक आपने अप्लाई नहीं बोला उसे। ठीक है, तो आपने किस पे क्लिक किया, आपने ये क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दिया। बताइए आपको पावर बीआई, हाँ, आप कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी में आना पड़ेगा। आप पावर क्वेरी में नहीं है, ट्रांसफॉर्म डेटा। फिर मैंने कहा फिल्टर करना है आपको, कौन सा टेबल है, सीसी में मैंने कहा आपको ये है ना कार्ड टाइप। हाँ, क्लिक करिए, सिलेक्ट ऑल को निकाल दीजिए, यहाँ पे गोल्ड और प्लैटिनम सेलेक्ट करिए, खाली गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, फिर मैंने कहा जो डेटा है जो जुलाई ना, जुलाई 2017, वहाँ पे हाँ क्लिक करिए, यहाँ पे कॉस्ट को आप ग्रेटर देन 50 बोलिए, फिल्टर करिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपने पावर क्वेरी में फिल्टर किया तो यही डेटा जो आप फिल्टर करेंगे ना, जो पास होता है वही डेटा आपको आपके आरटीएम में मिलेगा। देखिए अभी, सो नाउ व्हेन आई गो टू द टेबल व्यू, सर ये देखिए आप, अंडर द टेबल व्यू, अंडर दिस जुलाई, लुक एक मिनट पहले तो मैं ये फिल्टर निकाल देता हूं ताकि यू कैन क्लियर ऑल फिल्टर्स। ये क्लियर ऑल फिल्टर्स, ये देखिए आप, आपको पूरा डेटा लोड नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा था, वेयर द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द नंबर 30, ये देखिए आप। सो नाउ यू आर ओनली सीइंग द डेटा। अगर मैंने सॉर्ट कर दिया ना, इसे सॉर्ट किया मैंने असेंडिंग, तो 34 से स्टार्ट हो रहा है 49 तक, ये देख रहे हैं आप। एंड सेम में जो सीसी वाला डेटा है क्रेडिट कार्ड का, ये देखिए ओनली गोल्ड एंड ओनली प्लैटिनम, ये देखिए आप। So that's the biggest difference between working in Power Query and working in your T-View. T-View में अगर आपने कोई फिल्टर किया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर पावर क्वेरी में अगर आप फिल्टर करोगे, सो मैंने आपसे ये कहा कि द आउटपुट ऑफ पावर क्वेरी बिकम्स द इनपुट फॉर आरटीएम। और यहाँ पे ओवरलैप होना, मतलब ओवरलैप होगा ही होगा, मतलब आप बोलोगे वो सेम चीज आप पावर क्वेरी में भी कर सकते थे और वो सेम चीज आप आपके टी व्यू में भी कर सकते हैं। सो एज वी गो अहेड वी विल डिसाइड कि उसे कहाँ पे करेंगे आप। सम थिंग्स आर एक्सक्लूसिव, खाली पावर क्वेरी में कर सकते हैं आप। सम थिंग्स आर एक्सक्लूसिव, यू कैन ओनली डू दैट इन योर टी व्यू, बट देयर आर सम थिंग्स आप दोनों जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कॉलम बनाया ना आपने, वो कॉलम आप उसको पावर क्वेरी में बना सकते थे। हमने क्या ना वो टैक्स नो टैक्स वाला, हम उधर भी कर सकते थे वैसे, पावर क्वेरी में भी। हाँ, वहां पे भी हो जाता था, यहाँ पे भी हो जाता। अच्छा चलिए मैं एक स्टेप बता देता हूँ सर। मैंने क्या किया, मैं पावर क्वेरी में गया, ओके, और मैंने ना डेटा को फिल्टर कर दिया। तो मेरा बोलना ये है कि जो फिल्टर होने के बाद जो डेटा जाएगा ना, उसका आउटपुट कहाँ पे जाएगा, ये देखिए मैंने क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे मैंने सिर्फ गोल्ड एंड प्लैटिनम सेलेक्ट किया है, ये देखिए आप।
ठीक है। और ये जुलाई के डेटा में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कॉस्ट जो है ना शुड बी ग्रेटर देन 30। ये देख रहे हैं आप, बराबर है। अब जो भी किया आपने, ये देखिए राइट हैंड साइड पे एक नया स्टेप ऐड हो गया, ये देखिए आप। और आखिरी में क्या होगा, फिर मैंने किस पे क्लिक किया, क्लोज एंड अप्लाई। गलती क्या हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता ना, वो गलती हो जाती है। तो आप जो भी पावर क्वेरी में करेंगे, आपको ये नहीं समझना है कि वो आपके डेटा पे अप्लाई हो गया है, आपको खुद बोलना पड़ेगा कि क्लोज एंड अप्लाई। मगर हकीकत में ये उल्टा चल देगा, पहले अप्लाई होगा फिर क्लोज होगा। बटन है आपका क्लोज एंड अप्लाई, मगर चलेगा वो पहले अप्लाई फिर क्लोज। और क्लोज होके कहाँ पे जाएगा, वो आरटीएम के पास जाएगा। अब देखिए आपके आपके टी व्यू में आपके पास क्या है, यू ओनली हैव गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये देखिए आप, सेम वे आप अगर ये 2017 के डेटा में भी आए, लुक एट द कॉलम कॉल्ड कॉस्ट। ये देखिए इट इज स्टार्टिंग एट द नंबर, ये सबसे छोटा नंबर आप देखिए, इसको मैंने सॉरी कॉस्ट देखिए, कॉस्ट कॉस्ट का कॉलम सबसे छोटा नंबर 34 है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 49 है। ये देखिए आप, मैंने इस कॉलम पे मैंने इस कॉलम पे फिल्टर किया था। कॉन्सेप्ट या, चलिए वापस से नाउ वे वी आर अंडर द होम टैब, हम कहां पे है, ट्रांसफॉर्म डेटा। दोबारा आ जाइए ट्रांसफॉर्म डेटा पे। नाउ इस तरीके से यू कैन लोड योर एक्सेल डेटा। एवरीबॉडी ओके? अच्छा, नाउ एक चीज, जब भी आप काम करोगे ना, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। आप आरटीएम में हो या आप पावर क्वेरी में हो। यहाँ पे गलती क्या होती है, हमें लगता है कि हम पावर क्वेरी में हैं, मगर हम पावर क्वेरी में नहीं रहते। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप पावर क्वेरी में हो? अगर आप पावर क्वेरी में हो, लुक एट द डिफरेंट टैब्स, आपको वो आरटीएम नहीं दिखेगा। ये देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंटरफेस देखिए आप, इसका इंटरफेस कंप्लीटली अलग है। ये देखिए आप, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी टेबल्स। तो मालूम हो जाना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, फिलहाल आप पावर क्वेरी में हैं, है ना। मुझे ये बताइए साहब, अगर आप पावर क्वेरी में नहीं हो तो कैसे जाएंगे पावर क्वेरी में? होम टैब में जाइए और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए। अभी किधर हो आप? मतलब आरटीएम में। अभी आपको पावर क्वेरी में जाना है, तो कैसे जाएंगे आप? होम टैब में जाइए और देखिए ट्रांसफॉर्म क्वेरीज में ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन मिला आपको, क्लिक करिए। अभी कहाँ पे हो आप? परफेक्ट। आपका फिल्टर हुआ सर? फिल्टर होके आपने बैक करके चेक किया उसको? क्लोज किसको किया आपने? हाँ, क्लोज एंड अप्लाई करके कहाँ भेजेगा वो आपको? बराबर है। और फिर आपको दोबारा आरटीएम से कहाँ जाना है? पावर क्वेरी में। तो कैसे जाएंगे आप? होम टैब से ट्रांसफॉर्म डेटा आपको दोबारा कहाँ पे लेके जाएगा? पावर क्वेरी में। कॉन्सेप्ट सर वैभव आपका भी हो गया है? कौन सा वाला? ये डेटा हमने लोड तो कर दिया था ना, आप नहीं थे क्या ब्रेक के पहले? नहीं थे आप? तो ये पावर क्वेरी में आप आए कि अभी तक नहीं आए पावर क्वेरी में? आप होम होम टैब में ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए। गेट डेटा के राइट हैंड साइड पे अंडर क्वेरीज ट्रांसफॉर्म डेटा। नहीं, गेट डेटा में नहीं सर। मेरा स्क्रीन देखिए आप, एक मिनट में। आप होम टैब में गए, होम टैब में ग्रुप का नाम क्या है? क्वेरीज ग्रुप का नाम है। वहां पे देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा मिलेगा आपको, और ये देखिए टेबल के साथ एक पेन का साइन भी है। तो ये क्या करेगा सर, ये आपके डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। मगर एक चीज याद रखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आर ओनली पॉसिबल ऑन द कॉलम लेवल, नॉट ऑन द रो लेवल। मतलब आप किसी रो को डिलीट रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मगर आप कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस करना है ना, हम कॉलम लेवल पे करते हैं, रो लेवल पे नहीं करते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते रोल नंबर 2 रोल नंबर 4, नहीं, हम किस पे कर रहे हैं, हम कॉलम लेवल पे कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ओके? अच्छा ना, हमने क्या सीखा है अभी तक? हमने ये सीखा है हाउ डू बी लोड डेटा, हमने ये सीखा है। तो मैं क्या कर, जब भी आप प्रोफेशनली भी काम करोगे ना, यू विल बी लोडिंग अ लॉट ऑफ डेटा। तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक इट इनटू फोल्डर्स। बाय द वे, दोबारा आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप राइट नाउ वेयर आर यू? राइट नाउ ऑल्सो यू आर इन
पावर क्वेरी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पावर क्वेरी में हूं मगर आप लोग आरटीएम में हो। ओके, सो मैंने क्या किया, ये देखिए, ये जो टेबल्स है ना मेरे, मैंने तीनों टेबल को सिलेक्ट कर दिया। हाउ डिड आई डू इट? होल्डिंग द शिफ्ट बटन। करिए आप, आपने तीनों टेबल को सिलेक्ट किया, या पहला अगर टेबल सिलेक्टेड है, जस्ट होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द लास्ट टेबल। दोबारा सुनिए, आपका पहला टेबल है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, सिलेक्ट द लास्ट टेबल। फिर क्या किया आपने? राइट क्लिक। राइट क्लिक में आप कहां पे गए? मूव टू ग्रुप, एंड कहां पे गए? न्यू ग्रुप। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये सेम एक और लिखा सकता है ये। दोबारा बोलिए साहब। हाँ, नहीं, अगर आपने डेटा लोड किया ना, उसको मैंने अलग से लोड नहीं किया है, जो डेटा आपके आरटीएम में वही डेटा यहाँ पे दिखेगा। That very important. जब तक आपने काफी नहीं सीखा ना, तब तक आई विल नॉट एबल टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर क्वेरी आपके पास लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड यू हैव इन एक्सेल आल्सो। अब वो कहाँ पे है? आई विल शो इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Your question is that why will I not do this in Excel and why will I do this in Power Query? Am I making right? Okay. So the story is that the original data is one, and we cannot change the original data. Second hypothesis is, that's the assumption is, that one file, multiple people are connected to that same file. You are making a report. Yes, he's making a report. He's making a report. Now that data cannot be as per me. That data cannot be as per him. The data comes from the system. What you have to do is you have to get that data according to your convenience. And fair enough. And in such a way, now comes the main part. If the original data changes, your version changes automatically. अगर आप ये सेम चीज एक्सेल में भी कर सकते थे आप,
मगर आपको बार बार जाके फिल्टर लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, परमानेंट। परमानेंट मतलब आप सिंपली रिफ्रेश करोगे, आई एम द ओरिजिनल डेटा, माई डेटा चेंजेस, आपका फाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। दैट इज वॉट यू वॉन्ट, दैट इज स्टेप नंबर 1। बराबर, देन आई कैन डू दिस नाउ। अभी के लिए मैंने आपको जो सिखाया है, तो मैंने आपको ये एक ही चीज सिखाया है। नाउ वंस आई विल टीच यू मोर ऑप्शंस एंड आई विल बी गिविंग यू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। ऐसा हो सकता है कि आपने वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया हो, तो फिर आपको वो सॉल्यूशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो देयर कुड बी समबडी हु इज इन द क्लास जिसने वो प्रॉब्लम हकीकत में फेस किया हो। फॉर दैट पर्सन दैट कुड बी लाइफ सेविंग। मेक सेंस? बट राइट नाउ आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर टेलिंग मी, इट्स अ वेरी जस्टिफाइड थिंग, क्योंकि ये सेम चीज अगर मैं वहां पे कर सकता देन व्हाई हो गया। व्हाई डज अ पर्सन यूज पावर क्वेरी? मैं आपको एक लाइन बताता हूं। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, क्लीन नहीं है, okay, it has a lot of unwanted data, then the cleaning process is done in Power Query. मगर अगर मेरा डेटा क्लीन एंड नीट जैसा आता है, I can simply start visualizing it, then high possibility I will not use Power Query. I will directly take it and go in my R view and start working. That is the main. अब वो क्लीन अप मैम सबका स्टोरी अलग है, मेरा स्टोरी अलग होगा। जितना जैसा मेरा डेटा आता है वैसा मेरा स्टोरी बनेगा, इनका अलग होगा, उनका अलग। Am I okay with you? Yeah. सर वी ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने प्लीज मेरा स्क्रीन देखिए। अंडर द क्वेरीज पेन राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे आई हैव 3 टेबल्स एंड मैं आपको कहता हूँ कि आई वांट टू एंड देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, आई वांट टू पुट दिस अंडर चैप्टर नंबर 1। दोबारा सुनिए, आई वांट टू पुट अंडर चैप्टर नंबर 1। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों टेबल को सिलेक्ट कर दिया। हाउ वोंट यू सिलेक्ट, आपकी मर्जी है, पहले वाले को सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, लास्ट वाले को सिलेक्ट करो, या एक एक को करना है तो एक एक भी कर सकते थे आप। अभी now what will I do? I will go over the tables and I will do a right click. Okay, right click कहां पे गया, move to group, और मैं कहां पे गया, न्यू ग्रुप। दोबारा कहता हूं कहां पे गया, न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप। अभी अब अगर एंड मैंने इनको बोल दिया चैप्टर नंबर 1, ये देखिए, और मैंने बोल दिया ओके। अब आप अगर सोच रहे हो कि ये मैंने क्यों बनाया, देखिए आंसर आपके सामने है। When you start working, ऐसा होगा कि आपने डेटा 10 जगह से लिया है, but do you want to load all the 10 places over there? The answer is no. You only want to load one table. मैं आपको एक बेटर स्टोरी समझाता हूँ। आपके पास मान लो वेसल का डेटा आता है, जनवरी का डेटा है, फेब का डेटा है, मार्च का डेटा, अब तक जुलाई का डेटा आ गया मान लो। तो कितना महीना हो गया साहब, 7 महीना हो गया। तो क्या आपको रिपोर्ट व्यू में 7 टेबल चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए, एक ही टेबल चाहिए जो सातों को अपेंड करके एक टेबल बनाए। तो क्या आप सातों को डिलीट करेंगे? नहीं चाहिए, मगर रिपोर्ट में नहीं चाहिए, बैकएंड में चाहिए, आउटपुट में नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उनको लोड करेंगे, फिर सातों को हम सातों को अपेंड करेंगे। अपेंड मतलब स्टैक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और वो जो 7 है ना उसको डिसेबल कर देंगे, और एक जो जो स्टैक वाला है ना उसको हम लोग आगे भेजेंगे। तो मेरे आरटीएम में क्या गया, मेरा हकीकत में कितना है, 7+1, 7+1 हकीकत में 8 है, बट गया मेरा एक ही। तो मैंने अभी क्या किया ना, मैंने फोल्डर बना दिया। आप जो भी काम करोगे ना, तो वेसल का डेटा अलग आता है, पर्सन का डेटा अलग आता है, तो आप क्या करेंगे ना, आप फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही साथ में मल्टीपल फाइल के साथ काम कर रहे हो। एक्सेल में क्या होता है, ये मेरा वर्कबुक, तो वो कौन देगा, वो वर्कबुक है ना आपका, वर्कबुक ये वाला, ये वर्कबुक अलग है, वेसल का वर्कबुक अलग है, रैंक वाले का वर्कबुक अलग है। यहाँ पे सब लोग साथ में आ गए। एग्जैक्टली, व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट फोल्डर्स, अभी तो लगेगा कि ठीक है, आगे जाके आपके लिए इजी हो जाएगा। इफ यू नो कि ये किसका है, आप उसको फोल्डर में डाल देंगे। इंपॉर्टेंट, क्या ये फोल्डर आरटीएम में दिखेगा? आरटीएम में नहीं आएगा। और मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर जाऊंगा मैं, ये जुलाई का डेटा क्या मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए, तो मैंने रखा, ये डेटा चाहिए नहीं चाहिए, राइट क्लिक किया और मैंने एनेबल लोड पे मैंने क्लिक कर दिया। किस पे क्लिक किया, एनेबल लोड। ये मुझे बोलता है कि भाई अगर तूने कोई विजुअल बनाया ना, तो देख ब्रेक हो जाएगा, वाला चलेगा, ब्रेक कर दे। ये देखिए, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर देखिए थोड़ा सा इटैलिक बन गया है। इसका देखिए और इसका देखिए, मालूम पड़ेगा इटैलिक हो गया है। इसका मतलब ये ना क्या है, कि अभी ये जो डेटा है ना, इसका नामी डेटा है, ये आपके आरटीएम में नहीं जाएगा, और ये होगा आपके साथ। आपने लोड कितना किया है, 50 टेबल, गया कितना है, 5 टेबल, मगर 50 टेबल से बना आपका 5।
करिए, आप डेटा में जाइए, डेटा पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा एनेबल लोड। दोबारा कहता हूँ थोड़ा धीरे, यू फाइंड दिस ऑप्शन कॉल्ड एनेबल लोड। आपने एनेबल लोड उसको बंद कर दिया, कंटिन्यू, यस। ये बोल, अरे अभी सोचिए साहब, अगर मैंने क्रेडिट कार्ड को एनेबल लोड बंद कर दिया, वहां जाके आपने वो चार्ट वार्ट बनाया उसका, सब चलाना चालू कर देंगे, क्योंकि आपने डेटा ही नहीं भेजा है और आपने चार्ट बना दिया उसका। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा स्क्रीन देखिए, अब देखिए मैं सीसी पे गया, राइट क्लिक किया, एनेबल लोड को मैंने बंद कर दिया। सविता मैम, आर यू फॉलोइंग विथ मी? और हाँ बस, इफ आई एम गोइंग फास्ट जस्ट टेल मी। हाँ, ये देखो अभी इसको मैंने डिसेबल कर दिया। हाउ डू यू नो? इसका देखिए थोड़ा ऐसा इटैलिक बन गया है ये। ओके, अब सुनिए, आप नहीं कर रहे, सब देख रहे हैं। मैंने क्या क्लिक किया? क्लोज एंड अप्लाई। अब इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अलाउड, सुनिए, टू गो इनटू आरटीएम। तो आरटीएम में नहीं जाएगा, और अगर आरटीएम में नहीं जाएगा, आपने तो पूरा रिपोर्ट ही बिल्ड कर दिया है। ये देखो आप, ये इधर आया, सब चलाना चालू करेंगे आपका। ये क्रेडिट कार्ड का देखो आप, okay, Yumi, I went over the table. First of all, very important, Savita ma'am, I am in Power Query. अगर ये चीज आप आरटीएम में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कहां पे जाना पड़ेगा? आपको पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा। लुक एट माय स्क्रीन प्लीज। सो यस, फिर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैडम, आई डिड अ राइट क्लिक ओवर द टेबल नेम। एम आई ओके विथ यू? एंड आपने एनेबल लोड को निकाल दिया। तो देखिए, आपको एनेबल लोड निकालने की नियत, व्हाई डिड आई डू इट, द इंटेंशन बिहाइंड इट, वो मालूम होना जरूरी है। पूछे ना सर, पूछे ना। ऑन कर दिया तूने, अब नीचे क्लिक कर, नीचे क्लिक कर, फिर ऊपर क्लिक कर, आ गया। अभी तूने ऑन रखा है, ऑन रखा है मतलब वो जाएगा तेरे आरटीएम में। तुझे भेजना है कि नहीं भेजना है? तो फिर तू ऐसे ही रखेगा। नहीं भेजना है तो राइट क्लिक कर और एनेबल लोड को निकाल, राइट क्लिक मार और एनेबल लोड को निकाल दे। हाँ, अभी कंटिन्यू बोल। यहाँ पे है, मगर क्या वो तेरे आरटीएम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर, क्लोज एंड लोड एक्सट्रीम लेफ्ट। हाँ, रुक जा रुक जा, अभी पेज वन पे क्लिक कर, पेज वन नीचे, नीचे को, पेज वन नीचे नीचे, हाँ क्लिक कर, देख सब चिल्लाएंगे। है नहीं तेरे पास? ये देख यहाँ पे भी, किधर है तेरे पास? कि आपने भेजा ही नहीं उसको। अब दोबारा कहाँ पे क्लिक करेंगे? ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा ऊपर देखिए, ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज पेन, सॉरी होम टैब, क्वेरीज ग्रुप। हाँ हाँ, क्लिक करिए और उसको एनेबल लोड करिए, क्योंकि वो तो चाहिए ना हमें, कॉन्सेप्ट। अभी ओके सर, कॉन्सेप्ट चलिए। माई स्क्रीन प्लीज एवरीबडी, माई स्क्रीन। तो नाउ ये हो गया आपके, ये हो गया आपका फोल्डर का नाम। ये 3 नंबर का मतलब क्या है? कितने टेबल्स है आपके पास, और ये आपने बनाया नहीं, ये फ्री में मिल जाएगा आपको। हाँ, ये अदर क्वेरीज वो खुद ही बना देगा, बट इट ये मेरी मर्जी है। अगर मुझे ऊपर नीचे करना है, इसको पकड़ के मैंने नीचे कर दिया तो इधर आ जाएगा, इसको पकड़ के मैं ऊपर कर दूंगा तो ऊपर चले जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी को एक फोल्डर में डाल दिया तो नो नो, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट? अच्छा, नाउ इन दिस एंटायर प्रोग्राम आई एम गोइंग टू फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो अगर कल आपको ये पूरा रिकैप करना है, एक मिनट, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? राइट क्लिक करके वापस एनेबल लोड को ऑन कर दोगे आप। अच्छा सुनिए, आप क्यों करेंगे वो भी सुनिए आप। मान लो, मान लो अगर ओरिजिनल डेटा को आपने एनेबल लोड बंद कर दिया, इनके पास ओरिजिनल डेटा है, इन्होंने कुछ और डेटा डाल दिया, क्या आपका लोड होगा? क्योंकि आपने क्या बोला है? एनेबल लोड को बंद किया है आपने। सुनिए, अभी अभी आपको वो जो नया डेटा उन्होंने ऐड किया ना, वो चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे? एनेबल लोड को राइट क्लिक करके ऑन करेंगे, फिर क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे, दोबारा एनेबल लोड बंद कर देंगे। क्योंकि क्या किया आपने? नया नया डेटा लोड कर दिया आपने, अभी आपको उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने बंद कर दिया तो बंद कर दिया। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि मैंने बंद किया, फिर मैंने ऑन किया, दोबारा रिफ्रेश किया, दोबारा मैंने बंद कर दिया। बट स्टोरी में होना चाहिए मैडम, स्टोरी मतलब ऐसा स्टोरी होना चाहिए कि बाबा वही डेटा में वापस से कोई डाल रहा है डेटा, तो ऐसा सर स्टोरी हो गया तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी ओके? चलो लेट्स मूव नाउ बैक टू माय स्क्रीन प्लीज।
आई गो टू द होम टैब, आई गो टू, एक मिनट पहले मैं ये क्वेरी, हाँ मैं आपको बता रहा था कि इन द वर्कशॉप आई एम गोइंग थ्रू अ प्रेजेंटेशन। ओके, ये प्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, जस्ट इन ए मोमेंट। सो सी ड्राइव, दिस इज डेटा फाइल सी MSM 24, ये देखिए। सो आपको जो आपके पास जो V24 का फोल्डर है ना, वहां पे पावर BI क्वेरी एडिटर मास्टरी, ये एक ही पावर पॉइंट फाइल है, इनफैक्ट दो है, बट ये पावर BI क्वेरी एडिटर मास्टरी। ओके, आई एम ओपनिंग दिस फाइल, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। एंड ये वाले फाइल में क्या होगा, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इज डॉक्यूमेंटेड ओवर हियर। डॉक्यूमेंटेड मतलब एवरी स्टेप इज गिवन ओवर। मैं यहाँ से ही आई एम गोइंग अहेड। अगर आपको डिटेल में देखना है ना कि मैंने क्या किया, मतलब एक एक स्टेप अगर आपको देखना है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज नॉट एवरी स्टेप। अगर आप पावर क्वेरी के फोल्डर में जाओगे तो मैंने पॉइंटर्स PQ करके दिया है, पॉइंटर्स PQ। ओके, ये पॉइंटर्स PQ में आपको हर एक स्टेप कहाँ पे क्लिक करना है, कितनी बार क्लिक करना है, क्या करना है, ये आपको पॉइंटर्स PQ में मिलेगा। पॉइंटर्स PQ कहाँ पे है, पावर क्वेरी के फोल्डर में, इट्स अ वर्ड फाइल। चाहिए तो एक बार पॉइंटर्स PQ ओपन करके क्लोज कर दो, उसमें हर एक, नाउ इट नॉट मेक सेंस क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है आपको। एक बार मैं सिखाऊंगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या लिखा हुआ वहां पे। बट क्योंकि पावर क्वेरी में क्या है ना, यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, ऊपर क्लिक करो, नीचे क्लिक करो, काफी यहाँ वहाँ काफी है, तो हर एक स्टेप आपको ये पॉइंटर्स PQ में मिल जाएगा। मगर अगर आपको टॉप व्यू लेना है ना, खाली टॉप व्यू, तो ये टॉप व्यू मैंने ये पावर BI ये क्वेरी एडिटर मास्टरी, ये वाला अभी जो मैं ओपन कर रहा हूँ, दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन में आपको ये पूरा मिल जाएगा। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं नॉट नाउ करके मैक्सिमाइज कर देता हूँ। चलिए लेट्स गो अहेड। सो पावर BI का दिस इज ओके, आई स्पोक टू यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ये देखिए, तो पावर क्वेरी का जो गेट डेटा किया ना आपने पावर BI में, तो ये पावर क्वेरी के भीतर जाता है। उसके बाद क्या होगा, आपका डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज योर RTM वाला व्यू। ओके, एंड फिर हमने किस पे काम किया, विजुअलाइजेशन पे काम किया। ये हमारा पूरा लर्निंग कर्व रहेगा। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, हाउ टू कनेक्ट टू डिफरेंट डेटा सोर्सेस। फिर हमने क्या देखा, फिल्टर कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये करेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिबन, ये हम बात करेंगे। फिर मर्ज एंड अपेंड, ये अगर आपने ये सीख लिया ना, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी आपको VLOOKUP की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो, हाँ, जो VLOOKUP नहीं कर पा रहा है वो ये करेगा। एंड दैट आल्सो विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ VLOOKUP। VLOOKUP का लिमिटेशन क्या है, वो खाली लेफ्ट पे देखता है, अगर लेफ्ट पे नहीं हो गया राइट पे, तो क्या होगा। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि वो खाली पहला वाला वैल्यू दे देगा। सपोज पहला वैल्यू, यू डोंट वांट द फर्स्ट वैल्यू, आई वांट ऑल द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल एक सी फेरर का नाम है, अगर मैंने उसको ढूंढा, बट जहां ढूंढा ना वहां सी फेरर का नाम 10 बार है, क्योंकि वो 10 बार वेसल पे गया है, और मुझे 10 बार चाहिए। आप अगर VLOOKUP लिखेंगे तो पहली बार दिखाएगा, द फर्स्ट इंस्टेंस विल गिव यू, आई वांट द फर्स्ट इंस्टेंस, आई वांट ऑल द 10 इंस्टेंसेस। तो ये क्या करता है, ये दिस विल वर्क ऑन दैट, ये सब 10 इंस्टेंसेस दे देगा। वी विल टॉक अबाउट दिस। एंड सबसे मेन टू टॉपिक्स, वन इज मर्ज इज VLOOKUP, एंड वन इज अपेंड। मतलब जैन का डेटा है, फेब का डेटा है, आपको दोनों को साथ में लेके आना है। बिफोर द नेक्स्ट क्लास, कल का क्लास से पहले, आप अगर एक एक्सेल फाइल जिसमें आपने VLOOKUP लगाया है, और एक एक्सेल फाइल जिसमें आपके पास मान लो जनवरी का डेटा है एंड फरवरी का डेटा है, और आपको ये दोनों डेटा साथ में लेके आना, और अगर नहीं है तो बना दो, बट कीप दो डिफरेंट शीट या दो डिफरेंट फाइल, वो आपकी मर्जी। एक डेटा यहाँ रहेगा, एक डेटा अलग रहेगा। आपको क्या चाहिए, आपको दोनों डेटा एक के नीचे एक चाहिए, तो फिर हम प्रैक्टिकली उस पर काम करें। एक ही फाइल में एक शीट वो भी कर सकते हैं आप, दैट इज योर चॉइस। अलग अलग फाइल करना है वो भी आपका चॉइस है, बट टू डिफरेंट टेबल्स, आपका इंटेंशन क्या है, मुझे क्या चाहिए, एक रिपोर्ट, मगर ये अलग अलग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेसल का शीट है, ये A वेसल का शीट है, ये B वेसल का शीट है, आपको दोनों वेसल का शीट एक साथ में देखना है। मगर ए इसमें एक शीट का वेसल है, इसमें सेकंड शीट का वेसल है, आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको एक ही साथ में चाहिए। सो टिश्यू पेपर दे देना। VLOOKUP का फॉर्मूला अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी वेल एंड गुड। VLOOKUP का अलग क्वेश्चन है, इसका अलग है, दोनों साथ में हो गया तो भी चलेगा, बट आप ऐसा डेटा रेडी रखिए। चलिए,
आई एम स्क्रोलिंग डाउन, दिस इज ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट। फिर मैंने आपको ये इसका ये बता दिया रिपोर्ट व्यू। अभी ये डेटा नहीं, अभी ये टेबल हो गया है। दिस इज कॉल्ड द टेबल व्यू। और लास्ट का इज कॉल्ड, पहले रिलेशनशिप था, अभी मॉडल व्यू बन गया है। दिस इज द मॉडल व्यू। ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट व्यूज। आई स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, दीज ऑल। फिर हमने वी स्पोक अबाउट कैलकुलेट कॉलम हमने बनाया। फिर हमने पावर क्वेरी एडिटर के बारे में बात किया। मैंने आपसे ये भी कहा है कि इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एक्सेल, है एक्सेल में भी है आपके पास। एडिट क्वेरीज को अभी ये अपडेट हो गया, अभी एडिट क्वेरीज में हो गया, अभी ये ट्रांसफॉर्म डेटा हो गया, मगर आइकन वही है कि टेबल के साथ पेन का आइकन है आपके पास। फिर ये लेआउट, ये देखिए, दिस इज द क्वेरीज रिबन, द क्वेरीज पेन, द रिजल्ट पेन, फॉर्मूला बार एंड क्वेरी सेटिंग्स। ये स्ट्रक्चर पहले भी सेम था, आज भी सेम है। दोबारा सुनिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पहले भी सेम था और आज भी सेम स्ट्रक्चर है। रिजल्ट पेन, फॉर्मूला बार, क्वेरी सेटिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कहां पे हम लोग, आई गो वन सेल डाउन। सो पावर बीआई पहले होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, आप इंपोर्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज, सीएसवी, एक्सेल, फोल्डर, वन डाउन। इस पे हम काम कर रहे हैं। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, जिसे हम कॉलम्स में देखेंगे, रोज में देखेंगे, लिस्ट, रिकॉर्ड्स, टेबल्स क्या होते हैं, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज, एंड फाइनली जो हम लोड बोलेंगे कहाँ पे जाएगा, आपके आर टी एम में वो लोड होगा। इसे हम एक्सट्रैक्ट। तो फिलहाल हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने एक्सट्रैक्ट किया है, फिलहाल हम खड़े हैं ट्रांसफॉर्म में। जब भी आप पावर क्वेरी में हो ना, आप किधर खड़े हो, आप ट्रांसफॉर्म में खड़े हो। एक्सट्रैक्ट क्या था, हमने किया ना गेट डेटा, वो आपका एक्सट्रैक्ट है। You can connect to Excel, text, tab delimited, CSV, access file, and there are multiple data sources. मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डेटा सोर्सेज है वो, और वो चेंज होते रहता है, मतलब बदलते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। आप एक नजर ये भी देख सकेंगे, यू विल गेट ऑल द डिफरेंट डेटा सोर्सेज। गेट डेटा में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया आपको, गेट डेटा में ऑल दीज आर द डिफरेंट डेटा सोर्सेज। मैंने क्लोज एंड अप्लाई के बारे में बात कर लिया आपको। मैंने एनेबल लोड समझाया आपको। और ये जो फाइल पाथ किस पे है, अगर आपने सोर्स पे डबल क्लिक किया ना तो वो आपको राइट वाला फाइल पाथ बताता है। क्लोज एंड अप्लाई क्या करेगा, मैंने कहा था कि क्लोज एंड अप्लाई हकीकत में अप्लाई एंड क्लोज है। अगर आपने सिर्फ अप्लाई किया ना तो वो आपको पावर क्वेरी में ही रखेगा, आपको दोबारा कहाँ नहीं लिखे जाएगा, आरटीएम में नहीं लिखे जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये मैं कब करूंगा, अगर मेरी नियत ये है कि मुझे पावर क्वेरी में ही रहना है, मगर मैंने जो भी क्लिक क्लिक किया ना, फिल्टर वो सब चाहिए मुझे, तो मुझे अप्लाई बोलना जरूरी है। जब तक आपने अप्लाई नहीं किया तब तक प्रॉब्लम ये हो जाएगा, आपका पावर क्वेरी अलग डेटा बताएगा और आपका आरटीएम अलग डेटा बताएगा, और बार बार ना आपको ऊपर प्रॉम्प्ट आएगा कि आपकी डेटा को रिफ्रेश करो, आपकी डेटा को लोड करो, आपको प्रॉम्प्ट ऊपर आते रहेगा। ओके, मैंने दोबारा, अच्छा नाउ वी आर ओवर हियर। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम ऑन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो अच्छा एक मिनट, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक काम करते हैं, इसे हम कल स्टार्ट करते हैं। अभी 25 मिनट है ना, तो विजुअलाइजेशन पे आ जाते हैं, जो इजी पार्ट है उस पर पहले ध्यान दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसको अभी के लिए क्लोज कर दिया। इसको मैंने अभी के लिए डोंट सेव वाला, मैंने यहाँ पे इसे भी क्लोज कर दिया। एंड राइट नाउ मैं ये क्रेडिट कार्ड का डेटा है ना, मैंने तो मेरा लोड करना है, उसको मैंने एनेबल लोड ऑन कर दिया है। एंड जो डेटा है ना आपका, ये जुलाई 2017, इसको भी मैंने ऑन ही रखा है। डेटा को डिसेबल ही रखिए साहब, क्योंकि डेटा को मैं ये नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, मैं यूज नहीं कर रहा। ठीक है, सो नाउ मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द विजुअल कॉल्ड टेबल। और टेबल के भीतर जो उसके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप एक चीज याद रखिए, 50 to 60% ऑफ द फॉर्मेटिंग जो आप देखेंगे इज कॉमन इन ऑल द विजुअल्स। 50% तो पकड़ ही लो आप। ओके, बट हाँ, तो रिमेनिंग 50% विल बी डिफरेंट। 50% सेम है, 50% डिफरेंट है। तो अगर आपने एक विजुअल को देख लिया ना, तो 50% आप ये समझ लीजिए कि आपके बाकी के विजुअल्स 50% हो चुके। चलिए, सो लेट्स गेट अहेड। ओके, ये जुलाई वाले पे हमारा फिल्टर अभी भी है। ये कॉस्ट पे अभी भी हमारा फिल्टर है, ये देखिए आप, जो मैंने रखा है ना, कॉस्ट ग्रेटर देन 30, इसको मैंने निकाला नहीं है। चलिए, कैन आई गो हेड, एवरीबडी ओके विथ मी?
Can we go ahead? Yes. हाँ, हम रुकें, they are coming. अच्छा, मैं कहाँ पे गया? क्लोज एंड अप्लाई। हाँ, ये चीज आप ध्यान रखिए, ये क्रॉस करने का आदत मत रखिए। क्रॉस मतलब राइट होता है ना, क्रॉस करने का, दैट इज अ रॉन्ग हैबिट, बिकॉज वो आप करेंगे ना, दैट मीन्स यू आर नॉट सेंडिंग द डेटा बैक इनटू द आरटीएम। हाँ, तो आप क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करने का फ्रॉम फर्स्ट ओनली कीप इट हैबिट, कि अगर आपने कुछ भी किया क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। देखिए आप अभी ये देखिए, मेरा जो रिपोर्ट है इट्स ओनली टॉकिंग टू गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये देखिए आप, क्योंकि मैंने पावर क्वेरी में जाके क्या कर दिया, मैंने फिल्टर कर दिया, तो फिल्टर हो गया ये कॉन्सेप्ट। एवरीबडी ओके? चलो बैक टू माय स्क्रीन। अब मैं कहां पे हूं? मैंने एक नया पेज लिया है, ओके, और ये मैंने वो सोल्ड बाय वाला जो लिया है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आप। हाँ, तो इसमें आपके पास सोल्ड बाय है, सम है एंड एवरेज है। चलो, टिल हियर एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? ये हमने जब हमने क्लास स्टार्ट किया था ना, हमने ये टेबल बनाया था, और ये टेबल में हमने सोल्ड बाय में लिया था, वी आर टेकन द सम ऑफ प्राइस एंड द एवरेज। यहाँ तक आप लोग सबका स्क्रीन विजिबल है अभी? गुड टिल हियर? एक बार बता दीजिए। बस मैं यहाँ पे ओके सर, आप यहाँ पे रहेंगे तो क्या आप विजुअल पे काम कर सकेंगे? नहीं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मैंने यहाँ फिल्टर मारा तो रिपोर्ट में कुछ फर्क पड़ेगा? आगे नहीं पड़ेगा। पावर क्वेरी में किया तो पड़ेगा, पावर क्वेरी में किया तो पड़ेगा। Go for it. What's the question? Okay, no problem. You can. I'll share the link with ma'am. She'll send it to you. You can cover the last 20 minutes. ठीक है? Positive, man. Positive. Positive. You're welcome. Have a nice evening. Thank you. Right. Okay. Back to my screen, please. अभी now, what is the next step? आप okay. Look at my screen, please. अब मुझे ना इस विजुअल को क्या करना है? फॉर्मेट करना है. So I have to make sure that this particular visual is selected. So would you agree it is selected? And how do you know it is selected? ये देखिए आप, ये मार्कर्स दिखा ना, तो इट इज सिलेक्टेड। अगर आपने किधर बाहर एक बार क्लिक किया, मैंने पहले भी कहा था डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक से एक अलग विजुअल आ जाता है जो Q&A है। एक बार आप क्लिक करोगे तो देखिए वो गायब हो गया। वापस से आई वेंट ओवर द विजुअल और मैंने क्या किया, उसको मैंने सिलेक्ट किया। द मोमेंट यू डू दैट यू नीड टू सी, ये जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप? ओके, राइट हैंड साइड पे नाउ आप ये देखिए, लुक एट दिस पर्टिकुलर आइकन। हाँ, बट देखिए पहले ना वो पेज था, अभी वो चार्ट का फोटो दिखा रहा है। अभी आप ये नहीं बोलना रहे मैंने तो टेबल सेलेक्ट किया, ये कॉलम चार्ट के बता रहा है। ये इट्स नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एवरी विजुअल। दोबारा सुनिए, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एज पर द विजुअल। आपने विजुअल सेलेक्ट किया ना, तो ऐसे ही वो बताएगा, वो बटन उसका सेम ही रहने वाला, टेबल है या टेबल नहीं है। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे विजुअल को फॉर्मेट करना है। व्हाट डू मीन बाय फॉर्मेट?
आई वॉन्ट टू, ये जो टेबल है मुझे उसको कलर देना है, उसके हेडर का कलर चेंज करना है, उसको बॉर्डर देना है। आप ये देखिए फॉन्ट साइज कितना छोटा है उसका, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है मुझे। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। सो फार सो गुड। ओके, सो सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, आई वेंट इनटू फॉर्मेट योर विजुअल। फॉर्मेट योर विजुअल इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू टू सेक्शंस। एक आ जाता है विजुअल और एक आ जाता है जनरल। जो सबसे कॉमन है ना वो जनरल में आएगा, लाइक द विथ एंड द हाइट, द बॉर्डर, शैडो इफेक्ट, ये सारे के सारे जो सबसे कॉमन है ना वो जनरल में आएगा। जो सबसे थोड़े एक्सक्लूसिव है ना वो विजुअल में आएगा। तो वेर आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम विजुअल, राइट। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप एक करेंगे ना 50% ऑफ द अदर्स आर गोइंग टू बी कॉमन। इनफैक्ट जनरल में तो ना 80% सभी के सेम ही है। सबका एक्स एंड वाई एक्सिस होगा, सबका बॉर्डर होगा, सबका शैडो होगा। तो वो जो ऑप्शन है वो सब में सेम ही है। सो फार एम आई ओके विद एवरीबॉडी? सो फार सो गुड। चलो लेट्स गो। अभी मैंने क्या किया, दिस इज माय विजुअल। आई selected under the format your visual. Just give me one moment. I'll just try a proper better zoom option. Just give me a moment. It takes a little time to load. हाँ, मैं कहाँ पे गया? I went to the option called style presets. पहला वाला ऑप्शन स्टाइल प्रीसेट्स, जैसा नाम ही है ना प्रीसेट, मतलब क्या पहले से सेट करके रखा हुआ है। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉप डाउन में जाके किधर भी क्लिक करिए, फ्लैशी रोज, देखिए जैसा आप क्लिक करेंगे वैसा वो उसका साइज वो चेंज कर देगा। आप खुद के स्क्रीन पे करिए अंडर स्टाइल प्रीसेट्स, ये देखिए अंडर स्टाइल प्रीसेट्स स्टाइल क्या लिखा है, डिफॉल्ट। अगर मैंने नन बोल दूंगा ना वो सबसे 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 बेसिक नन, ओके। एंड अगर आपने मिनिमल बोला, मतलब मिनिमल मतलब सबसे कमती, तो ये भी देखो थोड़ा उसमें व्हाट डू यू मीन बाय पैडिंग? पैडिंग मींस हैविंग स्पेसेस बिटवीन सराउंडिंग द टेक्स्ट, दैट्स कॉल्ड पैडिंग ओवर हियर, ओके। द सेम वे अगर आपने यहाँ पे बोल दिया बोल्ड हेडर्स, तो आपके जो हेडर्स हो गए ये देखिए वो बोल्ड में हो जाएंगे, ये देखिए आप, ओके। फिर अगर आपने कहा ऑल्टरनेटिंग रोज, ऑल्टरनेटिंग रोज मींस एवरी रो हैव ऑल्टरनेटिंग कलर। तो what are these? These are all, these are the default ones. दोबारा सुनिए, these are the default formattings which you are seeing. Concept okay? ये हो गया alternating rows. फिर आ गया मतलब ये आप खुद भी देखोगे ना आपको मिल जाएगा, ओके। एनीवेज मैंने alternating rows पर रखा। एंड अगर आपको चाहिए बाबा आई वांट माय डिफॉल्ट, देन यू हैव द ऑप्शन कॉल्ड रीसेट टू डिफॉल्ट। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो जो आपका डिफॉल्ट है वो वापस से आ जाएगा, ये देखिए आप कहाँ पे गया हमें, रीसेट टू डिफॉल्ट। Now, before you go ahead, ये जो आपका visual है, it is broken down into three parts. सुन लीजिए, it is broken down into three parts. Now, what do you mean by three parts? It is broken down into step number 1, the header, step number 2, the value, step number 3, the grand total. इसे आप कहते हैं the header, the top. इसे आप कहते हैं value, these are your values, and at the bottom इसे आप कहते हैं the grand total. द ग्रैंड टोटल, ये देखिए आप। सो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द हेडर। नाउ ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आपके फॉर्मेटिंग में इन तीनों का अलग अलग सेक्शन है, मगर मुझे अगर एक ही बटन में ये तीनों को चेंज करना है, दैट हैपेंस टू द ग्रिड। एक्चुअली ग्रिड का मतलब क्या है? ग्रिड का मतलब है कि ड्रॉइंग लाइंस, ओके, या ग्रिड मीन्स ड्रॉइंग लाइंस। ग्रिड में एक सेक्शन है जिसे हम ग्लोबल फॉन्ट साइज कहते हैं। ग्लोबल फॉन्ट साइज क्या करेगा, वो सभी के टेक्स्ट के साइज को चेंज कर दे। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, सबसे पहले अगर मैं ग्रिड में गया एंड ये देखिए ये कलर बता रहा है विथ, अगर मैंने कलर ही चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग ही कलर दे दिया और विथ को मैंने ना 1 के बदले 5 कर दिया, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन ना। सो नाउ लुक एट द हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, ये देखिए आप। तो अगर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बता दिया तो आप वर्टिकल भी समझ जाओगे। तो एक वर्टिकल था तो एक हॉरिजॉन्टल है, कॉन्सेप्ट। और अगर आप एंड ट्राई टू गिव अ लिटिल बिग नंबर, ताकि यू नो अगर मैं 1 रखूंगा तो मालूम ही नहीं, मतलब मालूम पड़ेगा आपको, बट इट्स अ वेरी सटल थिंग। सीखने के लिए आप थोड़ा बड़ा नंबर दे दो, 5 दे दो, यू मतलब इट विल नॉट टेक अ नंबर लाइक 50 और 100, बट इट विल टेक अ लिटिल हायर नंबर। उसका हाईएस्ट नंबर भी देखो, लेस देन और इक्वल टू द नंबर 10,
मतलब 10 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। 5 ही देखो ना कितना बड़ा हो जाता है। फेयर इनफ। और अगर नहीं चाहिए आपको तो आपने अगर इसे ऑफ कर दिया तो आपकी ग्रिड लाइन देखिए वो ऑफ कर देगा। ये देखिए आप, मैंने ऑफ कर दिया। सेम वे यू हैव वर्टिकल ग्रिड लाइंस। नाउ बॉर्डर, नाउ बॉर्डर में आई कैन डिसाइड सेक्शन ऑल, ओनली द कॉलम, ओनली द वैल्यूज, ओनली द टोटल। अगर मैंने ऑल कहा, ऑल मीन्स टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये मैंने टिक खुद किया। सो यू आर लुकिंग एट बॉर्डर्स फॉर ऑल ऑफ दिस। ये देखिए आप, अगर आप सिंपली कुछ और चेंज करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आपने खाली कॉलम हेडर्स के लिए कहा, कॉलम हेडर्स के लिए मैं चाहूंगा कि मुझे ये कलर चाहिए, तो यू ओनली लुकिंग एट द कॉलम हेडर। दैट मीन्स कॉलम हेडर मैंने क्या कहा था कि जो टॉप पार्ट है, दिस इज योर कॉलम हेडर। ये देखिए कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी का यू कैन एक्सप्लोर एंड डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड अगर आपको मान लीजिए ये नहीं चाहिए, देन वंस अगेन यू लुक फॉर रीसेट टू डिफॉल्ट एंड कम बैक टू द डिफॉल्ट। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस में रो पैडिंग। अगर आपने 5 कहा, नाउ लुक एट द पैडिंग व्हिच यू हैव गिवन ओवर हियर। 1 है, 5 करके देख लो आप। फिर आप 0 करके देख लो आप। 0 में देखो कितना वो, मतलब हाउ क्लोज द नंबर बिकम्स टू ईच अदर। एंड अगर आपने 5 कर दिया, फिर देखो आप। सो आई वुड ऑलवेज से कीप अ गुड पैडिंग, ताकि द रीडेबिलिटी ऑफ द नंबर्स आर बेटर, यू कैन रीड इट बेटर। when you keep it 0, it is too much data together, but there is nothing right, there is nothing wrong। आप खुद देखो, जो अच्छा लगता है वो रखिए आप, जो नहीं लगता है you have to go ahead and change it, but this is subtle। subtle मतलब it should look nice। concept, everybody okay? अच्छा, now मैंने इसको 5 कर दिया। now comes global font size। अगर आपने global font size चेंज किया, you are changing everyone। the header आप इसको 10 से 12 कर दो। आप देखो इसने सब चेंज कर दिया, हेडर को भी चेंज कर दिया, वैल्यू को भी चेंज कर दिया, एज वेल एज द ग्रैंड टोटल। ये देखिए आप, 10 को 12 कर दो या 12 को 15 कर दो, फिर देखो क्या होता है। सो इट इज चेंज द फॉन्ट साइज फॉर द हेडर, फॉर द वैल्यू एंड फॉर द ग्रैंड टोटल। पर आगे जाके क्या होगा ना, यू ओनली वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज ओनली फॉर द वैल्यूज, और ओनली फॉर द ग्रैंड टोटल, और ओनली फॉर द हेडर्स। तब क्या करेंगे आप, तब आप स्पेसिफिकली वो सेक्शन पे जाएंगे और उसी को ही चेंज करेंगे आप। अभी क्या कर रहे हैं आप, आपको तीनों के तीन को चेंज करना है ना, तो नाउ यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू दैट। कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी ओके? चलिए, लेट मी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक मतलब उसका फॉर्मेटिंग में आगे जाते हैं हम लोग। हाँ मतलब जस्ट लास्ट 5 मिनट्स। I will not be able to complete all of them, but just one। अच्छा, माय स्क्रीन प्लीज। हमने ग्रिड के बारे में बात किया। अगर आप वैल्यूज में जाएंगे ना, यू ओनली मॉडिफाइंग द वैल्यूज। अब देखिए वैल्यूज में अगर मैंने 12 के बदले मैंने 15 कर दिया, अब देखिए ना, द हेडर्स विल रिमेन द सेम एंड ओनली द वैल्यूज आर बेसिकली चेंजिंग। परफेक्ट। देखिए जनरली जो आपका वैल्यूज होता है ना, दे आर वन टच स्मॉलर देन द हेडर। ओके, तो सबसे बड़ा आपका हेडर होता है, फिर आपका वैल्यू होता है। एंड अगर आपको चाहिए वैल्यू और ग्रैंड टोटल को सेम रखिए, ग्रैंड टोटल को हम बोल्ड कर देते हैं ताकि वो भी थोड़ा हटके आना चाहिए। ओके, बट कीपिंग ऑल ऑफ देम सेम, could be yes, could be no, depends। अभी ओके सो फार? एंड ये देखिए, ये सेक्शन में भी अलग अलग बता रहा है ना। ये देखिए आप, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर, ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर। अगर आपको सेम ही चाहिए तो आप सबको सेम ही रखोगे आप। व्हाट इज ऑल्टरनेट? आप देखो ना, आपका एक ग्रे है, एक व्हाइट है, एक ग्रे, एक व्हाइट है, आपको आपको सब व्हाइट ही चाहिए, तो आप यहाँ से व्हाइट ही कर देंगे आप। अगर आपने कॉलम हेडर्स में सेम चीज किया, दैट मींस नाउ यू ओनली मॉडिफाइंग द कॉलम हेडर्स। अभी मैंने 15 किया, पर ओनली कॉलम हेडर्स। मैंने बोल्ड किया, ओनली कॉलम हेडर्स। देखिए ना, ओनली योर कॉलम हेडर्स आर बिकम बोल्ड। लुक एट दिस।
और मैंने पहले भी कहा था, ना आप टेबल व्यू में, ना आप पावर क्वेरी में क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहाँ पे होता है, ये देखिए आप, ये जो सिंबल है ना आपके अलाइनमेंट के, ये लेफ्ट राइट सेंटर, ये आपको फॉर्मेटिंग में ही मिलेगा, ये आपको वो ऊपर नहीं मिलेगा। ऊपर मतलब जो आपके रिबन में नहीं मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। दैट वेयर डू यू वांट टू शो योर टेक्स्ट, वेयर डू यू वांट टू शो द नंबर्स। एक्सेल में ऊपर रहता है, इसलिए हमारी नजर ऊपर जाती है ना, क्योंकि इंटरफेस भी सेम है, हमको लगेगा सेम है, सेम नहीं है। कॉन्सेप्ट ओके। देन अगर मैं ऑप्शंस में गया, व्हाट इज ऑटो साइज, आप डबल क्लिक करते हैं ना, डबल क्लिक कब करते हैं आप, जब वो ऑटो विथ करने के लिए। तो अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया फिर मैंने ऑन कर दिया, अभी अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा ना, आई चेंज दिस, इसको थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ, और इसको मैंने मान लो विथ चेंज करके मैंने ऐसा कर दिया, ये ऑटो साइज विथ, इसको मैंने ऑफ किया फिर मैंने ऑन कर दिया। आप करते हैं ना कॉलम्स को डबल क्लिक करके ऑटो फिट करने के लिए, ताकि इट टेक्स द मैक्सिमम विथ। बट नाउ ये क्यों इतना बड़ा क्यों हो गया है, क्योंकि इसका साइज इसके हिसाब से एवरेज ऑफ प्राइस, इसको मैं अगर रीनेम करके छोटा नाम दे दूंगा तो वो भी जगह कम ले लेगा, सोचिए आप। तो मैंने क्या किया, आई केम बैक ओवर हियर एंड आई गिव अ स्मॉलर नेम, ये एवरेज है ना, इसको मैंने एवीजी नाम दे दिया। ठीक है, ये सम है, इसको मैंने टोटल नाम दे दिया, टोटल प्राइस या टोटल नाम दे दिया। अब अगर देखिए how much space you need, see this, now the amount of space also you need is much less, so this visual can actually stop over here rather than taking so much more space. Concept? Yeah, this is, हाँ, कॉलम हेडर्स एंड लास्ट में टोटल्स। टोटल्स कभी कभी ऐसा भी होगा ना, आपको टोटल नहीं दिखाना है, ये देखिए आप, तो मैंने कर दिया। आई विल रिपीट, वेयर डिड आई गो, अंडर टोटल्स फर्स्ट इज वैल्यूज, बताना है या नहीं बताना है, ऐसा हो सकता है कभी कभी देयर आर सर्टेन कॉलम्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का सीरियल नंबर ले लिया, सीरियल नंबर आप कभी किसी का टोटल नहीं करना चाहेंगे, तो यू कैन से आई डोंट वांट ऑफ, बताना है तो ऑन, एंड देन आई कैन डिसाइड कि ये टोटल क्या है, तो मैंने इंस्टेड ऑफ टोटल मैंने बोल दिया यहाँ पे एक्सपेंस, सपोज एग्जांपल। तो यहाँ पे देखेंगे ना, द बॉटम यू सी द वर्ड एक्सपेंस, ये देखिए आप, सेटिंग है क्या, नहीं, हैपेंस। चलिए, सो मैंने यहाँ पे आया, आई केम बैक ओवर हियर, कहाँ पे था मैं, आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट टोटल्स। ठीक है, एंड देन आई कैन डिसाइड एट व्हाट टेक्स्ट आई वांट एंड व्हाट फॉन्ट कलर आई वांट एंड एक्सेट्रा। अभी ओके टिल हियर, चलिए आई विल स्टॉप ओवर हियर, आई एम सेविंग माय फाइल, आई विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। आप में से किसी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी दैट क्वेरी। आगे का टॉपिक थोड़ा, इट्स अ लिटिल, नाउ द नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सो आई विल पिक अप कंडीशनल फॉर्मेटिंग व्हेन यू ऑल आर लिटिल फ्रेश। Before tomorrow's class, I need you all to pick up one data set. When I start only tomorrow, everybody को I'll give you all 2 minutes. आप लोग स्क्रीन में मुझे बताएंगे कि आप कौन से डेटा के साथ काम करना चाहते हैं। Our preference will be given to tabular data. What is tabular data? Header and data. हमारा पहला प्रेफरेंस उस पर है। अगर आपको चाहिए तो जुलाई वाला डेटा देखो, ये वाला डेटा देखो, आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या डेटा आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आप, मगर अगर ऐसा डेटा नहीं है आपके पास जिसमें हेडर और हेडर को लग के डेटा, अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कैसा डेटा है आपके पास, वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि फिर हमें वो डेटा को कहाँ डालना पड़ेगा, पावर क्वेरी में, उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट। कॉन्सेप्ट ओके, अभी गुड, चलिए, देन वी कनेक्ट टुमारो ऑन। व्हाट टाइम सर, I'll be First half, basically, center people one done. Done. कविता मैडम नहीं है, कनेक्ट तो मैं कर लूंगा, 1 मिनट, अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, दिस कॉन्वर्सेशन डजंट मेक सेंस, 1 मिनट।